So I captured this image on 3rd of May at 1 a.m. and I captured it for around 4 hours with the videos and images, and after the next 38 to 40 hours took for processing. And the reason behind the 50,000 images was to get the clearest picture of the moon. So daily we see images of any source. We zoom in and the image get pixelated. So to avoid that, I read about a technique of processing called as a mosaic technique, or we call it as a panorama. So what I did is capture a huge panorama of the moon. So I captured multiple videos on small portions of the moon at a great magnification, so I can see the individual craters. And then I captured such 38 videos, and I got around 2000 to 1000 frames each video. So once we get 1000 frames or 2000 frames each video, you can merge them together into a single image. So like that, now we have 38 photos, and then we stitch them into a software called as Photoshop. So once the stitching is done, we sharpen the image to see the crisp details of the moon, and after the stitching is done, we enhance the details and colors of the moon as well. I am a member and a volunteer at an organization called as Jyotiradya Parisanstha in Pune. It is India's oldest organization for amateur astronomers. So I joined Jyotiradya Parisanstha in 2017, and I started to learn more and more about astronomy there. And I learned about astrophotography through Jyotiradya Parisanstha, and I read some articles and saw some YouTube videos that contained information about the processing and how to capture these images and what exactly do you need to capture the images. I want to become an astrophysicist and study astronomy professionally, but astrophotography is just a hobby for me right now. I captured other multiple images of planets, galaxies, nebulae, and many such celestial objects. I captured the same image, the same technique a while back, but I captured only 3 videos for that image, and with a smaller telescope. So this is a better version of the earlier image. Okay, so the videos, the raw data is around 100 GB, and when you keep processing it, the data gets bigger and bigger. So the videos and the raw data all mixed was around 186 GB, and when I stitched them together, the final file was around 600 MB in the best file format. I wasn't expecting such reach, but I posted it on Instagram as well as Reddit, and on Reddit I got a lot of reach from different communities like Space and Nature is Lit. So through there an article was published in India Times where they mentioned my work, and from there it went viral. So मैंने ये फ़ोटो 3 मई को सुबह 1 बजे से निकालना चालू किया और 5:30 बजे तक निकाल रहा था, और उसके बाद फिर मैं घर पे जाके इसे प्रोसेस करना था. तो अगले 38 to 40 आवर्स में मैंने उसे प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद वो इमेज हमें मिली. तो फिर मैंने 50,000 इमेजेस क्यों निकाले, एक फ़ोटो भी कर सकता था, राइट. सो अभी हम जो भी फ़ोटोज़ देखते हैं डेली, तो वो हम जब उन्हें जूम करते हैं तो वो पिक्सेलेट नहीं तो ब्लर हो जाती है, बट मेरा ऐसा प्लान था कि वो ब्लर नहीं होनी चाहिए. सो जैसे हम मोबाइल्स में पैनोरामा निकालते हैं, वैसे ही मैंने मून का पैनोरामा निकाला. मैंने क्या किया कि मून के अलग अलग हिस्सों के छोटे छोटे वीडियोस निकाले, और उन वीडियोस में से मुझे फ्रेम्स मिले, इमेजेस मिले. अभी फॉर एग्जांपल एक वीडियो ने मुझे 2000 फ्रेम्स दिए. सो वैसे मैंने 38 वीडियोस निकाले अलग अलग फ्रेम्स के, अलग अलग फ्रेम रेट के. सो फिर उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 इमेज, उनमें से मुझे 50,000 इमेजेस मिले, और फिर वो 50,000 इमेजेस, अभी एक वीडियो लिया, उसे पूरा प्रोसेस किया, उसकी एक इमेज मिली, तो फिर वैसे 38 इमेजेस मिल गए. सो 38 इमेजेस मिलने के बाद हम उन्हें फ़ोटोशॉप नहीं तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर में स्टिच करते हैं, जिससे उसके डिटेल्स एनहांस होएंगे. तो फिर एनहांस करने के लिए और मतलब शार्प करना है, उसके कलर्स वाइब्रेंट दिखने चाहिए, तो फिर वो डिटेल्स के लिए मैंने फ़ोटोशॉप और लाइटरूम में उन्हें एनहांस किया, और फिर IMPPG बोल के एक सॉफ्टवेयर में मैंने उन्हें शार्प किया. हाँ, सो
अभी ये फ़ोटो की खासियत मतलब हमने इसे कितना भी जूम किए तो ब्लर नहीं होएगा। अभी हम जो नॉर्मल फ़ोटोज़ देखते हैं तो हम उन्हें ब्लर जूम करने के बाद वो ब्लर होते हैं, नहीं तो ऐसे वियर्ड दिखने लगते हैं। बट इसे हम कितना भी जूम कर सकते हैं और उसके डिटेल्स ब्लर नहीं होएंगे और वो फ़ोटो पिक्सेलेट नहीं होएगा। तो मैंने जो पहले इमेजेस निकाले थे वो सेम टाइप के थे, बट उन्हें जूम करने के बाद वो एक पॉइंट के बाद ब्लर हो जाते हैं। इसे मिनरल्स का कुछ मेंशन किया था, कौन सा? मिनरल्स। यस। सो ये जो कलर्स दिख रहे हैं मून के सरफेस पे हमें, तो वो मिनरल्स के कलर्स है। सो मून के सरफेस पे जस्ट लाइक अर्थ इट हैज़ मिनरल्स, सो इट इज़ रियली मिनरल रिच मून है। सो अलग अलग कलर्स अलग अलग मिनरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ब्लू कलर जो है वो मेनली टाइटेनियम ऑक्साइड, फिर आयरन और अलग मिनरल्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो ऑरेंजिश कलर है वो कॉपर और ऐसे अलग मिनरल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो कलर्स है हमारी आंखें उन्हें इतना रिजॉल्व नहीं कर सकती है, बट DSLR कैमराज और अदर कैमराज कैन रिजॉल्व देम, और उनकी मदद से हम उन्हें देख सकते हैं और उन्हें एनहांस कर सकते हैं। जैसे कि सैचुरेशन जो रहता है उसे बढ़ा के वो कलर्स और एनहांस होकर दिखेंगे। सो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर और मेंबर हूँ। सो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज्योतिर्विद्या परिसंस्था है, जो पुणे में बेस्ड है, और वो इंडिया की सबसे पुरानी एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स की एसोसिएशन है। सो ज्योतिर्विद्या परिसंस्था ऑर्गेनाइजेस मैनी सच इवेंट्स लाइक स्टार गेजिंग सेशंस, एस्ट्रोनॉमी के एग्जीबिशंस और एस्ट्रोनॉमी के कोर्सेज, एस्ट्रोफोटोग्राफी कोर्सेज एंड मैनी मोर। सो मैं 2018 में मैंने मेंबरशिप ली और उधर से एस्ट्रोनॉमी के बारे में और सीखने लगा, और फिर उधर से मैंने एस्ट्रोफोटोग्राफी भी चालू की। सो एस्ट्रोफोटोग्राफी के डिटेल्स के लिए एक कोर्स रहता है, सो वो कर सकते हैं। नहीं तो फिर यूट्यूब और इंटरनेट की मदद से मैंने और अलग प्रोसेसिंग टेक्निक्स और कैप्चरिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, और फिर अभी मैं डेली नए नए टेक्निक्स पढ़ रहा हूँ कि हाउ टू मेक माई इमेजेस लुक मोर बेटर। आगे मुझे करियर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में करने का है, बट फॉर नाउ एस्ट्रोफोटोग्राफी इज़ जस्ट अ हॉबी। इट इज़ द क्लियरेस्ट पिक्चर फॉर मी, एंड ऐसे ज़्यादा इमेज, हाँ यस। सो 186 GB इज़ अ लॉट इन फॉर मून डेटा। अभी लोग एक इमेज निकाल के भी उसे कर सकते हैं, बट फॉर मून ये अलग अलग हिस्सों के मैंने जूम करके निकाले हैं, तो फिर वो क्लियर है कंपेयर।